جو سب سے اہم بات ہی ہوئی ہے کہ ادب کے ساتھ علم کا امتزاج ہو تو دنیا آخرت کی ہر بلندی حاصل کی جا سکتی ہے. اور ایک شعر میں ٹیچرز کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں. خود سے چل کر کوئی طرز سخن نہیں آیا ہے, پاؤں استادوں کے دابے ہے تو فن آیا ہے. موٹیویشن ملی اور اشفاق ملک صاحب ان کی از خود جو ذات ہے ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. میں باقی کالجز کو پیغام دینا چاہتی اونلی ساؤنڈ باڈی کیپس اے ساؤنڈ مائنڈ. تو باڈی کے لیے ہمیں مائنڈ اچھا رکھنا پڑا ہے. مائنڈ اچھا رکھنے کے لیے ہمیں ویک آف سرمنیز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. تو اس میں ہم بنا بہت سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ہم سر اشفاق کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. اور آخر میں سر کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ عروج ہو زمانے میں تجھے نصیب ایسا, عروج ہو زمانے میں تجھے نصیب ایسا کہ آسماں تیری وسعتوں پہ ناز کرے. اور سب سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ نمبر لینا اتنی کوئی اہم بات نہیں ہوتی. اسٹیج پہ جانا ہی سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے. اور جو بچے یہاں پہ آنے سے ڈر رہے تھے, اسٹیج پہ آنے سے ڈر رہے تھے, سر اشفاق نے انہیں بھی اسٹیج پہ لایا. ٹیچر سے اور اسپیشلی سر اشفاق سے جو ہمیں چیز سیکھنے کو ملی وہ ہے کہ اپنے کام سے کے ساتھ لوئل کیسے رہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پہلے اپنے پرنسپل کا شکریہ ادا کروں گی, جہاں ہم اسٹڈیز کے اسٹریس میں اتنے زیادہ تھے کہ ہم لوگ مطلب بالکل ہم لوگ کو ایک ضرورت تھی کہ ایسی سرمنیز ہوں جہاں ہم انجوائے کر سکیں. اور سب سے زیادہ تھینک فل ہم لوگ سر اشفاق کے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ ایسی چیزیں مہیا کی کہ جہاں پہ ہمارے اس سرمنیز میں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. کانفیڈینس اس سے بہت بچوں کا ہائی ہوا. کی جو ابھی ہم لوگوں کا یہ سیکھنے کا اسٹیج ہے, اس سے ہم سیکھیں گے تو آگے جا کے بڑے اسٹیج پہ ہمیں بولنے کا موقع ملے گا. کیونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ اسٹیج بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ ایک نصابی تعلیم ہے جس میں پیپرز ہیں, نمبرات کی دوڑ ہے, اور اس کے ساتھ ذرا سے ہٹ کر یہ ایک اسٹیج ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ اپنے اندر چھپا ہوا جو ٹیلنٹ ہے اس کا اظہار کرتا ہے, اس کو سامنے لاتا ہے. اور اگر سے وہ ریفریش ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے وہ پڑھنے کی طرف اچھی طریقے سے توجہ دیتے ہیں. اور یہ سرمنیز ہونی چاہیے. بچوں کی جھجک باہر نکلتی ہے. جو بچے اسٹیج سے ڈرتے ہیں ان کا ڈر باہر نکلتا ہے. اور مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگ گیا. سرمنی بہت اچھی تھی, اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا, اور اس پر ہم سر اشفاق ملک کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام عروبہ زاہد ہے اور ادھر ہم نے بہت کچھ سیکھا. جو بچے اسٹیج پہ آنے سے ڈرتے ہیں, اور یہاں میں سر اشفاق کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے سرمنیز کروائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عبدالغفار, آپ دیکھ رہے ہیں اجیرا ٹی وی, اور اس وقت میں موجود ہوں عبداللہ میرج ہال میں. آج سٹار سائنس کالج کی جانب سے یہاں پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. سالانہ ویک آف سرمنیز کا انعقاد کیا گیا تھا. آج اختتام پذیر ہوئی اور یہاں پر بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. میرے ساتھ وہ بچے اس وقت موجود ہیں جنہوں نے ان سرمنیز میں پرفارم کیا. کسی نے تقریر میں حصہ لیا, کسی نے ڈبیٹ میں حصہ لیا, کسی نے ڈرامے میں حصہ لیا, کسی نے ٹیبلوں میں حصہ لیا. بہت سارے بچے یہاں پر موجود ہیں. ناظرین, یاد رہے کہ یہ تقریبات نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بہت اہم کردار پلے کرتی ہیں. بہت اہم رول ہوتا ہے ان کا بچوں کا آگے نکھر کر سامنے آنے میں. میرے ساتھ اس وقت ایک بچی موجود ہے, اس سے ہم پوچھیں گے اور جانیں گے کہ اس نے ان سرمنیز کو کیسا پایا, کیا نیا سیکھا اور کس ایونٹ میں حصہ لیا. سب سے پہلے بیٹا اپنا نام بتائیے گا, کس کلاس سے تعلق ہے بتائیے گا, اور یہ سرمنیز آپ کے لیے کس طرح یوزفل ہوئی, کس طرح مفید ہیں, اور کیا نیا سیکھا ان سرمنیز نے, بتائیے گا. السلام علیکم, میرا نام زارا واجد ہے اور میں کلاس 9 کی طالب علم ہوں. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو سرمنیز ہوئی ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی, کیونکہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں سیکھتے تھے. جب تک ہم لوگ اسٹیج میں نہ آئے تب تک ہم لوگ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. اور سب سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ نمبر لینا اتنی کوئی اہم بات نہیں ہوتی. اسٹیج پہ جانا ہی سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے. اور جو نیچے بیٹھے طالب علم ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں, کیونکہ اسٹیج پہ جانا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ بندہ اسٹیج پہ جا کے سیکھتا ہے, اور جو بندہ کام پر ہوتا ہے اس کی جو بندہ ڈر رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد بندہ نہیں ڈرتا. اور آپ نے کس ایونٹ میں حصہ لیا تھا؟ میں نے تو فرسٹ آف آل قوالی میں لیا تھا. اچھا, قوالی میں آپ نے حصہ لیا. مطلب آپ کے کہنے سے مراد ہے کہ یہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ وہ کتابی باتیں ہیں, ان سے ہٹ کر اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیوں کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ہونا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ بات کرنے کے لیے. ایک اور بچی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. بیٹا نام بتائیے گا, ویک آف سرمنیز کا حصہ رہی, آپ نے پرفارم کیا, ہم نے آپ کی پرفارمنس دیکھی بھی, کیا نیا سیکھا ویک آف سرمنیز میں, بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام صالحہ سرور اور کلاس 2nd ایئر سے ہوں. میں نے ان سرمنیز میں یہ سیکھا ہے کہ یہاں پہ ہار جیت نہیں, یہاں پہ جو اسٹیج پہ آ گیا وہ جیتا ہی جیتا ہوا ہے. اور ایک شعر میں ٹیچرز کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں. خود سے چل کر کوئی طرز سخن نہیں آیا ہے, پاؤں استادوں کے دابے ہے تو فن آیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کی نہایت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے. ہر بچے کو ان ایونٹس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ کچھ نیا سیکھے اور کچھ نیا کرنے کا جذبہ جنون پیدا ہو. تھینک یو جی بیٹا, بات کرنے کے لیے بہت شکریہ.
एक और स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि स्टार साइंस कॉलेज की ये जो वीक ऑफ सेरेमनीज़ हैं 2 हिस्सों में डिवाइड हैं। बॉयज़ के लिए एक दिन बॉयज़ के लिए मुख्तस किया जाता है, जबकि दूसरा दिन जो है वो गर्ल्स के लिए मुख्तस किया जाता है, यानी सेपरेट इनका इनाकाद किया जाता है। एक बच्ची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ये भी वीक ऑफ सेरेमनीज़ का हिस्सा है। इस वक्त आप बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं, चूँकि आज आखिरी दिन था वीक ऑफ सेरेमनीज़ में, जो विनर ग्रुप है वो सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है मुख्तलिफ अंदाज से। ये बच्ची है, इससे हम जानेंगे बेटा वीक ऑफ सेरेमनीज़ इख्तिताम पजीर हुई, 3-4 दिन की ये एक्टिविटी थी या गालबन हफ्ते की ये एक्टिविटी थी, इसमें क्या नई चीज़ सीखी वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीसा है, मैं क्लास 9 से हूँ। इस वीक ऑफ सेरेमनी में हमने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि जो बच्चे यहाँ पे आने से डर रहे थे, स्टेज पे आने से डर रहे थे, सर इशफाक ने उन्हें भी इस स्टेज पे लाया, सर इशफाक ने उन्हें भी स्टेज का हिस्सा बनाया और आज ये इख्तिताम पे पहुंची है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जिन बच्चों को बोलने की हिम्मत भी नहीं थी वो भी आज स्टेज पे आए और उन्होंने भी प्राइज़ लिया। बहुत शुक्रिया बात करना। वेलकम बैक जी। इस वक्त कुछ और बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। वीक ऑफ सेरेमनीज़ का ये भी हिस्सा थी, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया बेटा, क्या नया सीखा? और स्टार साइंस कॉलेज की तरफ से निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ ये जो गैर निसाबी एक्टिविटी है, इसको किस नज़र से देखते हैं, बताइएगा हमारे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। गैर निसाबी सरगर्मियों से हमने बहुत कुछ सीखा और जो सबसे अहम बात थी वो ये है कि अदब के साथ इल्म का इम्तिजाज हो तो दुनिया आखिरत की हर बुलंदी हासिल की जा सकती है, और अपने दीन और अपने कॉलेज को प्रमोट करने के लिए इंसान को हर फॉर्म पे बोलना चाहिए। थैंक यू जी। इस तरह से बड़ी खूबसूरत बात की कि अदब के साथ इल्म का और इसका बेहतरीन इम्तजाज है और इसका इजहार यही स्टेज है। इस स्टेज की वसातत से ही बच्चे निखर कर सामने आते हैं और फिर वो अपनी अमली ज़िंदगी में कामयाबी से हमकिनार होते हैं। एक और बच्ची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बेटा, सबसे पहले नाम बता दीजिएगा अपना और उसके साथ साथ बताइएगा कौन सी क्लास से ताल्लुक़ है और वीक ऑफ सेरेमनीज़ में क्या कुछ नया सीखा और किस नज़र से देखती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम धुरे कशफ है और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ओनली साउंड बॉडी कीप्स ए साउंड माइंड। तो बॉडी के लिए हमें माइंड अच्छा रखना पड़ा, और माइंड अच्छा रखने के लिए हमें वीक ऑफ सेरेमनीज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। जी बिल्कुल, वीक ऑफ सेरेमनीज़ एक तरह की रिफ्रेशमेंट एक्टिविटी है। स्टूडेंट पूरा साल पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ इनकी ज़रूरत होती है साल के आखिर पर कि कोई ऐसे इवेंट हों जिनमें वो रिफ़्रेश हो सकें, और एक बार फिर इन एक्टिविटीज़ के बाद जब तालीम का अमल शुरू होगा तो ये बेहतर अंदाज से फोकस कर पाएंगे। बेटा, आप भी वीक ऑफ सेरेमनीज़ का हिस्सा रही, हफ्ता आपने एंजॉय भी किया, कुछ नया भी सीखने को मिला, क्या कुछ नया सीखने को मिला और क्या आपने परफॉर्म किया इन वीक ऑफ सेरेमनीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तहरीर मजीद है और मैं क्लास 2nd ईयर से हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें इन सेरेमनीज से सीखने को मिली वो ये कि हमारी खुद एतमादी में इजाफा हुआ है। और यहाँ स्टार्स कॉलेज में आके यहाँ के टीचर से और स्पेशली सर इशफाक से जो हमें चीज़ सीखने को मिली वो ये कि अपने काम से के साथ लॉयल कैसे रहा जाता है। और इसके अलावा मैंने हुस्न क़िराअत के मुकाबले में और उर्दू फिलबदी तकरीर में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ था, और इसके अलावा मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं जो स्टेज पे आके इससे पहले मैं कभी भी शायद नहीं सीख सकती थी। जी बिल्कुल, आपने नई चीज़ें सीखी। बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच साथ रहने। अच्छा, एक और स्टूडेंट जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बेटा, आपने भी वीक ऑफ सेरेमनीज़ में खूब एंजॉय किया होगा, खूब नई चीज़ें सीखी होंगी, क्या कुछ नया सीखा और क्या सजेस्ट करते हैं बाकी कॉलेजेस को, बाकी स्कूल्स को कि वो भी इस तरह की भरपूर किस्म की एक्टिविटीज़ को का इनेकाद करवाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करूंगी, जहां हम स्टडीज़ के स्ट्रेस में इतने ज़्यादा थे कि हम लोग बिल्कुल हम लोग को एक ज़रूरत थी कि ऐसी सेरेमनीज़ हों जहां हम इंजॉय कर सकें। इंटरटेनमेंट की बात करूं तो खुल के हमने इंटरटेन किया, और इसके अलावा जिन टॉपिक्स हम लोग की स्पीच थी बहुत मोटिवेशन मिली, और इशफाक मलिक साहब उनकी खुद जो ज़ात है ना हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैं बाकी कॉलेजेस को पैगाम देना चाहूँगी कि वो भी ऐसे सेरेमनीज़ करें, और मोस्टली वो लोग भी कोशिश करें कि ऐसे टॉपिक्स उनके डिबेट्स जिनसे स्टूडेंट मोटिवेट हो। जैसे हमारा टॉपिक अगर मैं शेयर करना चाहूँगी कि था कि नंबरात का म्यारी तालीम में क्या किरदार हो सकते हैं। बहुत अच्छा एक मोटिवेटिव टॉपिक था और बहुत मजा आया, और हमने इस सेरेमनी से बहुत कुछ सीखा। थैंक यू जी। बिल्कुल, नंबरात का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेज का भी बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट आगे यहाँ से निकल कर आगे जाते हैं, निखर कर उनके अंदर जो टैलेंट है वो सामने आता है, और यही वो स्टेज है जो उनको मौके मुहैया करते हैं कि वो आगे आ सकें और फ्रंट फुट पर आकर लीड कर सकें। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट मौजूद हैं। स्टार साइंस कॉलेज में वीक ऑफ सेरेमनीज़ इख्तिताम पजीर हुई, यहाँ पर सेलिब्रेट भी इन्होंने खूब किया। बेटा, आज आपका आखिरी दिन था वीक ऑफ सेरेमनीज़ में, कितना एंजॉय किया बताइएगा। सर, मेरा नाम आयशा है, मैं फर्स्ट ईयर से बिलोंग करती हूँ, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने सेरेमनी से सीखी कि डिसिप्लिन भी बहुत हद तक था। हमारी जो भी बात स्टेज पे होती है सब बच्चे एहतमाम
पजीर होकर सुनते हैं उसे, उनकी बातें बहुत मोटिवेशनल लगी। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हम लोग सर इशफाक के हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुहैया की कि जहाँ पे हमारे दिमाग बिल्कुल सुन हो चुके थे, तो उन्होंने हमें रिफ्रेशमेंट के लिए एक बहुत अच्छी सेरेमनीज प्रोवाइड की। सो थैंक यू सो मच स्टार्स कॉलेज जीरा, आल टीचर्स एंड स्पेशली सर इशफाक। थैंक यू जी बात करने के लिए। आप भी सेरेमनीज का हिस्सा रही, अब कितनी एक रिफ्रेश हैं आप? अब दोबारा जब एजुकेशन का सिस्टम शुरू होगा, दोबारा क्लासेस शुरू होंगी, तो क्या समझती हैं कि ज़्यादा बेहतर अंदाज से फोकस्ड होंगी? जी, मेरा नाम कायनात फातिमा, मैं क्लास 9 सेक्शन ए से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा ये कहना है कि सेरेमनीज़ भी हमारा एक हिस्सा है और हमें इस सेरेमनीज़ में से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कॉन्फिडेंस इससे बहुत बच्चों का हाई हुआ और बहुत बच्चों ने इस मरतबा बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करके बहुत परफॉर्म किया स्टेज पे आके। और मेरा यही कहना है कि इसके बाद भी पहले तो सेरेमनीज़ में बहुत अच्छे से किया और आगे भी मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से ज्वाइन करके रखूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में भी अच्छा करूँगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख भी रहे हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस यकीनन ये स्टेज की वजह से है। जब ये यहाँ पर आते हैं, परफॉर्म करते हैं, इनके कोलीग सामने बैठे होते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, कोई नई चीज़ें सीखते हैं, ड्रामा करते हैं, टैबलो करते हैं, मुख्तलिफ कंपटिशन्स का हिस्सा बनते हैं, तो बहुत कुछ नया सीखने को इनको मिलता है। एक और स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बेटा, आप भी बताइएगा, वीक ऑफ सेरेमनीज बिलाशुबा इख्तिताम पजीर हुई, इख्तिताम पर क्या लेकर जा रही हैं? क्या नई चीज़, क्या नई स्किल आप सीखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा स्टेज है यहाँ पे सेरेमनीज़ का, वो सीखने का स्टेज है, क्योंकि इसके बाद तो हमने यूनिवर्सिटी लेवल में चले जाना है। और वो स्टेज होता है वो बोलने का होता है, वो सीखने का नहीं होता है। और यहाँ पे हमने सीखना है कि हम लोगों ने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है स्टेज के आगे जाके। और मैंने यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया था वो मैंने तिलावत कुरान पाक में किया था। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि इतने बड़े मजमे को मैंने अल्लाह ताला का कुरान पाक सिखाया है। और उसके बाद मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, जो कि नमरात मयार तालीम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम सर इशफाक के भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और आखिर में मैं सर के लिए एक शेर कहना चाहूँगी कि अरूज हो ज़माने में तुझे नसीब ऐसा, अरूज हो ज़माने में तुझे नसीब ऐसा कि आसमां तेरी वुसअतों पे नाज करे। शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कुछ बच्चे और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बेटा, आप भी यहाँ पर वीक ऑफ सेरेमनीज़ का हिस्सा रहे, नई चीज़ें यहाँ पर बिलाशुबा परफॉर्म हुई, उनमें बहुत सारी कोई नई क्रिएटिविटी थी, नई एक्टिविटीज़ थी। आप कितना कुछ यहाँ से सीख कर आज जा रहे हैं, और आपने क्या परफॉर्म किया, ये बताइए। मेरा नाम इशार खान है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। और ये जो सेरेमनीज़ होती हैं, इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों की जो अभी हम लोगों का ये सीखने का स्टेज है, इससे हम सीखेंगे तो आगे जाके बड़े स्टेज पे हमें बोलने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, बगैर किसी मुबालगा आराई के मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूँ कि स्टूडेंट के लिए ये स्टेज बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि एक निसाबी तालीम है जिसमें पेपर्स हैं, नंबरात की दौड़ है, और उसके साथ ज़रा सा हट कर ये एक स्टेज है यहाँ पर स्टूडेंट अपने अंदर छुपा हुआ जो टैलेंट है उसका इजहार करता है, उसको सामने लाता है। और अगर इस तरह की तकरीबात होती रहेंगी तो बिलाशुबा स्टूडेंट निखर कर और निकल कर सामने आते रहेंगे। चंद स्टूडेंट मेरे साथ हो रहे हैं, मुख्तसर इनसे बात करेंगे। बेटा, आप भी अपने व्यूज़ का अपने कमेंट दीजिएगा, आज इख्तिताम पजीर हुई सेरेमनीज़ क्या कहना चाहे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान तारिक, और सेरेमनीज़ हर कॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट दे के बच्चे बोर हो जाते हैं और इन सेरेमनीज़ से वो रिफ़्रेश हो जाते हैं और दोबारा से वो पढ़ने की तरफ अच्छी तरीके से तवज्जो देते हैं। थैंक यू जी। रिफ्रेशमेंट और दोबारा स्टडीज़ पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानूर है और मेरा ताल्लुक 9th क्लास से है। और ये सेरेमनीज़ होनी चाहिए, बच्चों की झिझक बाहर निकलती है, जो बच्चे स्टेज से डरते हैं उनका डर बाहर निकलता है। और इन सेरेमनीज़ से बहुत कुछ मिला है हमें सीखने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि फ़लस्तीन में जो हालात चल रहे हैं, उनकी वजह से सर इशफाक ने किसी किस्म के टैबलो और इस तरह की चीज़ें नहीं रखी थी, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीसा हलीक है, मैं फ़र्स्ट ईयर से हूँ। अभी हाल ही में मैं स्टार कॉलेज में मैंने एंट्री की है और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। सेरेमनी बहुत अच्छी थी, इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, और इस पर हम सर इशफाक मलिक का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी पर मैं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरुबा ज़ाहिद है और इधर हमने बहुत कुछ सीखा। जो बच्चे स्टेज में आने से डरते हैं, और यहाँ मैं सर इशफाक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सेरेमनीज़ करवाई, और बहुत सारे स्कूल में सेरेमनीज़ करवानी चाहिए। और बस सही है, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन,
स्टार साइंस कॉलेज की जानब से वीक ऑफ सेरेमनीज़ इख्तिताम पजीर हुई। यहाँ पर बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने आज मुख्तलिफ इवेंट में हिस्सा लिया, मुख्तलिफ गैर नसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो स्टेज की वसादत से नाजरीन तक पहुँचाई। आज इख्तिताम पजीर हुई। बिलाशुबा इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना खुशाइन बात है। यहाँ से इन्हीं एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट निकल कर सामने आते हैं जो कल माशरे का फ़ाल रुकन बनते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।